Let's start our class. So in previous class you have studied these programming skills and different rules. Now we are integrate ladder logic input and ladder logic output. What is mean by ladder logic input and what is mean by ladder logic output? So when we are doing ladder logic program in PLC, so we will use some input and we will use some output. These input and output are denoted by specific symbols. So in today's class, we will study first that what is the input and what is the output that used for the ladder logic. And then we will start some basic ladder logics programming. So there are main three inputs in ladder logic program. As you have studied it, one is normally open and one is normally closed. And the third one is IIT, immediate input, immediate input. Immediate, we have taken I prime immediate and one I prime the start of the input and T is the last T of the input. So IIT, this is mean immediate input. The normally close, this is the normally open switch and this is the normally closed switch. You may know that what is mean by normally closed switch. So The normally closed switch will doesn't allow the current from this point to this point when you not energize this switch. And you also know that the normally closed switch is behave normally closed switch is relay coil. When we energize the input of the relay coil, then it will become closed. So simple we mean that the normally closed switch, this is supposed to show the rung of the PLC. This show the rung of the PLC. And there is some output, either a motor, either a light, etc. There will be current flowing here. But this switch will not allow this current to move from this point to this point. When you energize this switch, when you energize the input of this relay, so it become closed circuit. And when it become closed circuit, the current will be flow from this point toward this point, and then it will gives to the output, and the output will be energized. So this is the function of normally closed switch. ये आपको याद होनी चाहिए that what is meant by normally closed, normally open. So the normally open switch is that switch which doesn't allow the current from its left to right until you energize the switch. And normally closed switch will allow the current from that point to that point generally, commonly. But when you energize the input coil of this switch, so it becomes open and does not allow the current to flow from that point to that point. This is called the this is the function of normally closed switch. The third switch is IIT, but the IIT mean immediate input.
and we will use this switch in our timer circuits and counter circuits and other mathematical models, logical, etc. What they do, the immediate input will give the current value, not those from the previous input scale. This is the main difference between this and this. So when the normally open switch is energized, the current will be flow, and this will be doing its job. But suppose we have used the counter here, and we use this counter there is another switch, and we want to control another output from that. And this switch you depend on this counter current value. So कहने का मतलब ये है कि if we use that this is the room and we want to enter just 20% for dinner to that room. So how we will operate this system? After 20%, the door must be closed. So it means suppose this is the motor of the door. So it will depend on this current value of the counter. It will be open when they enter one person, so they will send that only one person is here, second person, third, fourth, fifth. So it means this switch depend on not all previous value, it depend on current value. That what is the current value of this counter or timer. So for this we use the IIT, and the IIT is not any special switch in the ladder logic code. We can use this switch is IIT and this switch is IIT. But when we use switch as IIT, we will then this switch will take the value of current input, not previous input. So this is the difference between the IIT and other switches, and it will be more clear to you when we use the this switch in our timers circuit and counter circuit, that you will see that it will only depend on the um, uh, current value, not the previous value. So these are the inputs and that we will generally use in the our ladder logic circuit. Ladder logic output. सर पोया finish हो कम या कोई नहीं, कौन सी वन? immediate बने सर
So consider its value become 1 and this is not energized क्योंकि it depends on the current value. Now it when it reached to 5, so it become on. So it means that we have used this normally open switch, but we have connect this to that DN switch, and it does not depend on the value previous. It depends on the immediate value of this DN. That what is the value of this DN? So and what is the value of DN? It's the value of accumulator. So it will become reach to 5, so it will give the energized weight. So this switch is behave and depend on its value when we close it or open it. So it will just when we close it, so the enable pin will be on, that the counter is enabled. In every time when you open it, so it will when close it, so the enable pin will be on. But this switch does not depend on any previous value. It depends on the immediate value. So what is the immediate value? In previous case, if you want to clear it, if you want to clear it, so the previous value of the accumulator is what? 0. Now the previous value is 1 and previous value is 2. The previous value is 3. The previous value is 4 and the previous value is 5. So now it depends on its immediate value, that what is the previous value, but they will not energize until it reach to 5. So it depends on the immediate value of the accumulator. So this switch is now as a IIT. समझ आइए अभी? Sir, कोई Sir, भी the IIT. Hello, sir. the IIT on the phone. so these are the input values in the different input we use in the what we will use in the ladder logic, and these are the output that we will use in the ladder logic. ये तो आपके साथ नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज शो करते हैं। एक सिंपल हमारे साथ आउटपुट होगा जो कि अभी हमने यूज किया आउटपुट एक कायल होगा। इसमें भी दो किस्म के हैं, लेच और अनलेच, और एक होता है OSR। OSR का क्या मतलब होता है? ऑन शॉर्ट और रिले। और एक होता है IOT, इमीडिएट, वो का मतलब है आउटपुट टी। ये भी इस तरह होगा जैसे कि अभी हमने बता दिया। अभी इधर हमारे साथ इमीडिएट आउटपुट कौन सा था? इधर ये स्विच इमीडिएट इनपुट था IIT, और ये क्या था? इमीडिएट आउटपुट, क्योंकि ये जस्ट इमीडिएट आपके साथ, या इस तरह भी है कि ये आप इसके साथ भी लैच कर सकते हैं। ठीक है, याद आओ मंग बेफो मैथमेटिकल ऑपरेशंस की पूरी डिटेल बनी दसर ऑपरेट कुन बे पहले पूरी डिटेल बनी। लेकिन अभी आप ये याद रखिए कि एक हमारे साथ ये नॉर्मल कायल है जो अभी हमने यूज़ किया। सो नॉर्मल कायल आपके साथ एक आउटपुट आ सकती है। एक होता है लेच, तो लेच भी आज आप पढ़ेंगे इसमें कि लेच का क्या मतलब है। ठीक है, लेच डाले, दिस इज कॉल्ड लेचिंग। सो इधर आपको समझ आ जाएगा कि लेच के, ठीक है। और अभी जो एडवांस पीसीएस में आप डायरेक्ट लेच भी यूज़ कर सकते हैं,
लेकिन अगर आप यूज़ भी ना करें तो ये एक सिंपल तरीक़ाकार है कि आप इसको कैसे आउटपुट को इनपुट के साथ लैच करेंगे। इसमें हम ये स्विचेस पढ़ेंगे, सारी आउटपुट हम जो पढ़ेंगे, आउटपुट हमारे साथ क्या होगा, एक आउटपुट हमारे साथ होगा लैच आउटपुट, एक होता है अनलैच। लैच का मतलब ये होता है कि ये एक दफ़ा आपने स्विच ऑन किया तो आपके साथ ये ऑन होगा, फिर ये डिपेंड नहीं करता कि आप स्विच ऑन करें या ऑफ करें। फॉर एग्जाम्पल इस तरह ये देखिए, इधर मैं सपोज एक दूसरा स्विच को उठा लेता हूँ। जिस तरह सर स्टार्ट एंड स्टॉप होता है। हाँ स्टार्ट होता कधी कहना। अभी ये देखिए, ये स्विच आपके साथ, ये लाइट अभी आपके साथ ऑफ है ना, और वो स्विच भी ऑफ है। इसको आपने ऑन कर दिया ताकि साथ स्विच लाइट आएंगे। अभी इसको आप ऑफ कर दें फिर भी आपके साथ आने, तो दिस इज कॉल्ड लैच। समझ आ रही है कि आप ये पहले आप क्या करें, इनपुट इसको इनिशियल में होनी चाहिए, बाद में इसको इनिशियल, बाद में इसको नहीं हो, इसको कहते हैं लैच। अब इसका जो उलट होगा उसका नाम होगा अनलैच। दिस इज ओपन शॉर्ट राइज, ये आपके साथ जस्ट इमीडिएट राइज हो जाएगा, अदरवाइज ये आपके साथ इनर्जाइज नहीं हो जाएगा। और एक आप जो IoT का मतलब होता है इनपुट आउटपुट इमीडिएट आउटपुट। लेकिन ये नोट याद रखिए, आउटपुट आर आल्सो कॉमनली शोन यूजिंग पेरेंथेसिस। इधर हम इसको पेरेंथेसिस में यूज करते हैं, ये जो है पेरेंथेसिस में यूज करें। और पेरेंथेसिस में जब आप इसको यूज करें तो इसमें आपके साथ इस तरह स्पेसिफिक नाम इसका नहीं होगा कि लैच है, अनलैच है, ये सारी पेरेंथेसिस से शो करेगा। फिर ये डिपेंड करता है कि आपने इसको एज नॉर्मल काइल यूज किए, आपने इसको एज मोटर आउटपुट यूज किए, इसको आपने एक लाइट इधर आप एज आउटपुट यूज किए, आपने एक लैच काइल यूज किए, अनलैच काइल यूज किए, ठीक है, आपने इसको इनपुट इमीडिएट कर दिया, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन दी योर लेडर लॉजिक कोड दैट आप किसको किस अंदाज से करते हैं, लेकिन इसको जनरली हम किस चीज़ से यूज़ करेंगे, पेरेंथेसिस से। समझ आ रही है अभी? Let's start that how we will do a little logic and we will to handle our real world problem. So a case study, what is mean by case study? केस स्टडी का मतलब ये होता है कि हमारे साथ एक सिस्टम हो और इस सिस्टम के लिए आपको कोई कहे कि इसको आप इसके लिए आप लॉजिक कोड कर रहे, तो इसको आप कैसे हैंडल करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड केस स्टडी and you may study this case study and some other subjects also, that in the end of the chapter we say that case study. So let's suppose a problem, try to develop a relay based controller that will allow 3 switches in a room to control a single light. ये हमारे साथ एक प्रॉब्लम है कि हम क्या करेंगे, हमारे साथ 3 स्विचेस होंगी जो कि रिले बेस्ड स्विचेस होंगे। रिले बेस्ड स्विच मीन नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आपने क्या करना है, आपने इससे एक सिंगल लाइट को ऑन ऑफ करना है। इन 3 स्विचों से आपने कंट्रोल करना। सो एक तरीकाकार तो ये है कि देयर आर 2 पॉसिबल अप्रोचेस to tackle this problem. The first, assume that any one of the switch on will turn on the light, but all the 3 switches must be off for the light to be off. एक तरीकाकार ये है कि हमारे साथ ये एक लाइट है, ये हम इस तरह रीड कंट्रोल कर सकते हैं कि एक स्विच भी ऑन हो तो ये ऑन होगा,
लेकिन इसको अगर आप ऑफ करना चाहते हैं तो हर एक स्विच को आपने ऑफ करना होगा। अगर आप हर एक स्विच को ऑफ ना करें तो आप इसको ऑन नहीं कर सकते। एक तरीका कार ये, इसमें हमने जस्ट 2 पॉसिबिलिटी, इसमें तीसरा पॉसिबिलिटी ये भी है कि हम इस तरह कर दें कि तीन स्विचेस को सीरीज में लगा लें, तो फिर आपके साथ ऑन तब होगा जब तीनों ऑन होंगे, और जब तीनों ऑफ होंगे तो आप क्या करेंगे, आपके साथ लाइट ऑफ होगा। अभी ये हमने पैरेलल में लगाया है, ठीक है, पैरेलल में। तो अगर स्विच 1 ऑन हो तो आपके साथ करंट आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने तो रूल पढ़े, ये हमारे साथ एक रंग है और हमारे साथ ये दूसरा रंग। इधर हमारे साथ लेफ्ट से राइट आपके साथ करंट फ्लो करेगा, तो इधर भी करंट फ्लो करते हैं, इधर भी करंट फ्लो करता है, इधर भी करंट फ्लो करता है। लेकिन ये स्विच चूंकि नॉर्मली ओपन है, ये भी नॉर्मली ओपन है, ये भी नॉर्मली, तो ये करंट इधर हमारे साथ नहीं आ सकती, इधर हमारे साथ नहीं आ सकती, इधर हमारे साथ नहीं आ सकती। तो हमने क्या किया, अगर हम इसको एनर्जाइज करें, एनर्जाइज दिस, ताकि साथ करंट इधर आ जाएगा, जब इधर आ जाएगा तो आपके साथ लाइट को मिल जाएगा और लाइट आपके साथ ऑन हो जाएगा। अगर आपने इसको एनर्जाइज कर दिया तो आपके साथ करंट इधर आ जाएगी और यहाँ से करंट जाती हुई इधर आ जाएगी और आपके साथ लाइट ऑन हो जाएगी। अगर आपने इसकी जगह इसको एनर्जाइज कर दिया तो आपके साथ करंट इधर आ जाएगी और करंट होती हुई, तो सारी कंडीशन में आपके साथ लेफ्ट से राइट की तरफ फ्लो है तो ठीक है। लेकिन अगर इसको आप फिर ऑफ करेंगे तो ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, इसको भी ऑफ करेंगे, इसको भी ऑफ करेंगे, इसको भी ऑफ करेंगे, तो आपके साथ एक तरीकाकार ये। दूसरा हमारे साथ ये कि अगर हम इसको इस तरह कर दें, एक स्विच मैं अक्सर जब पैरेंथेसिस यूज करता हूँ, ठीक है, दिस इज स्विच 1, this is switch 2, this is switch 3। अभी करंट इधर फ्लो करते तो ये अलाउ नहीं करता, जब इसको हम ऑन कर दें, एनर्जाइज करें, तो करंट इधर आ जाएगा, इधर नहीं आएगा। तो इसको एनर्जाइज करना होगा तो करंट आपके साथ इधर आ जाएगा, फिर इसको एनर्जाइज करना होगा तो करंट आपके साथ इधर आ जाएगा और ये आपके साथ ऑन हो जाएगा। तो एक तरीका का तो इसको इस तरह है, एक वन मेथड, दिस इज सेकंड मेथड। इसके अलावा दूसरा मेथड भी है टू टैकल दिस प्रॉब्लम कि हम क्या करें, एक कमरे का एक लाइट है, हम इसको 3 स्विचों से लेडर लॉजिक के जरिए कंट्रोल करना चाहते हैं। इसके लिए हम पीएलसी प्रोग्रामिंग करते हैं ताकि हमारे साथ पीएलसी में इसको जस्ट ऑन ऑफ कर दे और इसके लिए कोड कर दे, फिर हम इसको किसी भी स्विच से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो एक तरीकाकार तो इसका ये था, दूसरा हमारे साथ क्या था, ये था। तीसरा जो कि बहुत इंटरेस्टेड है वो ये कि हम इसको इस तरह कर सकते हैं कि 3 स्विचेस को हम यूज करें एट ए टाइम। हम कितनी स्विचेस को यूज करें इसको, अभी ये अब में से कोई ये बताए इसमें कितने रंग से, हेलो, यस सर। इस लेडर लॉजिक में कितने रंग से, एक भी रन नहीं है सर। रंग ना रंग, रंग सर लाइट प्रमुख सर ऑफ ही सर 1 रंग कितने रंग हैं, जस्ट 1 रंग है, ठीक है। आपको मैंने आपको बताया था कि इसको रंग कहते हैं, ये के साथ एक है, इसमें इस तरह है, तो दिस इज रंग। अभी इसमें एक रंग है, ठीक है, ये इसके ब्रांचेस है, सब ब्रांचेस, 1 ब्रांच, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लेकिन ये जस्ट एक को कंट्रोल करते हैं, इसका मतलब है दिस इज 1 रंग। मेरे साथ एक रंग था लेकिन हमने इसके साथ क्या लगा दिया, एक ब्रांच लगा दिया, एक स्विच इधर एक इधर, इसके बाद ये हमने दूसरा स्विच लगा दिया। हमारे साथ इसमें जस्ट एक रंग है और कितनी ब्रांचेस है, एक रंग में 1 2 3 4 ब्रांचेस है, 4 ब्रांचेस मेक दिस रंग।
बट हाउ दिस विल फंक्शन, ये कैसे काम करते? सो हमने एक रूल पढ़ा था कि हम इनपुट को बार बार यूज कर सकते हैं लेकिन आउटपुट को एक दफा यूज करेंगे। तो इधर हमने ये देखिए आउटपुट एक दफा यूज किया और इनपुट को हमने इधर भी 3 स्विचेस यूज कर, स्विच 1 2 3 नाम है, इसके भी स्विच 1 2 3 नाम है, इधर भी स्विच 1 2 3 नाम है, इधर भी स्विच 1 2 3। सो इधर हमारे साथ ये कि अगर आपके साथ हमने इस तरह से कि स्विच 1 आपके साथ ऑन हो, स्विच 2 भी अप हो, स्विच 3 भी अप हो, क्योंकि इसके लिए हमने कौन सा स्विच यूज किया? नॉर्मली क्लोज। नॉर्मली क्लोज का क्या मतलब है कि ये यहाँ से अगर यहाँ अगर करंट आ जाए तो डायरेक्ट इधर क्या करेगा? शिफ्ट करेगा, और इधर अगर करंट आ जाए तो इधर शिफ्ट करेगा। और इसको और ये जो स्विच 1 है ये करंट को यहाँ से इधर शिफ्ट नहीं करता, तो इसको एनर्जाइज करेंगे। इसको हमने एनर्जाइज कर दिया, करंट इधर आ गया, इसकी एनर्जाइज की जरूरत नहीं है। तो जस्ट स्विच 1 को हमने एनर्जाइज किया तो हमारे साथ करंट इस डायरेक्शन से आ सकती है ना, और हमारे साथ लाइट ऑन होगा। दूसरा तरीकाकार ये है कि हम इसको स्विच 1 भी नॉर्मली क्लोज हो, स्विच 3 भी नॉर्मली क्लोज हो, स्विच 2, तो यहाँ से करंट इधर डायरेक्ट लिया जाएगा। इधर अगर करंट हो तो ये भी डायरेक्टली इधर जा सकते हैं, लेकिन इधर हमने एक नॉर्मली ओपन लगाया है, इसको एनर्जाइज करना होगा ताकि करंट इधर यहाँ से आ जाए। तो अगर कोई स्विच 2 को क्लोज करी तो हमारे साथ करंट इधर आ जाएगा और ऑन हो जाएगा। तो अगर स्विच 1 ओपन करी फिर भी आपके साथ करंट होगा, स्विच 2 तो फिर भी आपके साथ होगा। तीसरा ये है कि इसको भी क्लोज करें तो करंट इधर डायरेक्ट आ जाएगा, इधर भी डायरेक्ट आ जाएगा, इसको एनर्जाइज करना होगा। तो थर्ड अगर की एक कोई एनर्जाइज करी तब भी आपके साथ ठीक है। और एक तरीका कार ये है कि सारे स्विचेस को अगर आप ऑन करें, तीनों स्विचेस को, तो तब भी आपके साथ क्या हो जाएगा? ऑन होगा। ठीक है, तीनों स्विचेस अगर आप ऑन करें तो आपके साथ लाइट ऑन होगा, अगर आप एक स्विच को भी ऑन करें तो आपके साथ लाइट ऑन होगा। अभी इसका मतलब ये कि पिछली से इसमें फायदा ये है कि पिछली में आप तो या तीनों ऑन करते थे तो आपके साथ सिस्टम ऑन होता था, या ऑफ करने के लिए आप सारे को ऑफ करना पड़ता था। इधर आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप एक स्विच को ऑन करें तो आपके साथ सिस्टम ऑन, इसको दोबारा ऑफ करें तो आपके साथ सिस्टम ठीक है। अगर आप इस 2 को ऑन करें और दूसरे को ऑफ कर दी तो फिर भी आपके साथ काम ओके, अगर इसको आपने ऑफ कर दिया काम हो जाए। तीसरा भी है, और अभी साथ ये कि तीनों को ऑन करें। तो अभी इसमें ये तरीका करनी है कि मस्ट आपने जब आप इसको ऑफ करना चाहते हैं तो मस्ट आपके साथ तीनों ऑफ होंगी या नहीं होंगी। ठीक है, तो इसमें हमने थोड़ा बहुत टेक्निकली इसको सॉल्व किया है इस प्रॉब्लम को एक दूसरे तरीके से। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इतनी ज़्यादा स्विचेस लगाई, ठीक है, ये लेडर लॉजिक कोड है। ठीक है, लेडर लॉजिक कोड, इसको आप बर्न करें तो आपके साथ फिर तो रियल में तो आपके साथ स्विच 1 एक दफ़ा होगा। समझ आ रही है? फॉर एग्जाम्पल आप रूम में तो आपके साथ आपने एक स्विच का नाम दिया है स्विच 1, इसका नाम है स्विच 2, स्विच 3। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक लाइट को 6 बटन से ऑन कर दें, 1 2 3 4, इसका नहीं कि आप 12 स्विचेस को यूज़ करेंगे, जस्ट 3 स्विचेस है, लेकिन इसको आपने लेडर लॉजिक में बार बार यूज़ किए। अभी इसको जब आप इसको पीएलसी में एक दफ़ा बर्न करें फिर स्विच को आप जिस तरह नॉर्मल तरीके से ऑन ऑफ करते हैं तो आपके साथ ये काम करेगा। समझ आ रही है? यस सर। सो ये हमारे साथ था कि एक केस स्टडी था कि हम इसको कैसे टैकल करेंगे इस प्रॉब्लम को, अगर कोई आपसे कहे कि हमारे लिए एक ये प्रॉब्लम सॉल्व करें। ये तो अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से हम जाएंगे ताकि आपको क्लियर हो जाएगा, और साथ साथ में अच्छे अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं था कि आप रूम का एक रूम और उसका एक लाइट आप से ऑन करें या आप करें। दिस इज़ नॉट एन इशू इन फिगर बिलो। लेकिन इसका मतलब ये था कि हम आपको इसका बेसिक्स आपको समझा दें कि कैसे लेडर लॉजिक प्रोग्राम आप पीएलसी में कैसे बर्न करेंगे। सो इन फिगर बिलो will a power for the output in the first rung normally be on or off? Would the output on the second rung normally be on and off?
In the figure below, will power for the output on the first rung normally be on or off? Would output on in second rung? ठीक है, इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। तब जो इसने कहा है, फॉर एग्जाम्पल हमारे इस तरह कर रहे कि हमारे साथ है स्विच 1, ये हमारे साथ है स्विच 2, ये हमारे साथ है सपोज मोटर 1, और ये हमारे साथ है पायलट लाइन 2। ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि एक रंग में आप कुछ प्रोसेस कर रही और दूसरी रंग में भी इसको क्या करें, कंट्रोल करें। तो ये तब होगा कि हम इस तरह करें कि इसको मोटर 1 का इफेक्ट हम इधर इंक्लूड करें। तो ये कैसे काम करेगा? अगर स्विच 1 आपके साथ, इफ स्विच 1 इज ऑफ, स्विच 1 आपके साथ क्या ऑफ है, जब स्विच 1 ऑफ है, ठीक है, जिसका मतलब है यहाँ से करंट इधर नहीं आएगी, तो मोटर 1 आपके साथ क्या ऑफ है। जब मोटर 1 आपके साथ ऑफ है, इसका मतलब है ये स्विच 2 नॉर्मली क्लोज है, इसका मतलब है जब मोटर 1 ऑन है तो ऑफ है, तो इसकी कॉइल को करंट नहीं आएगी। जब कॉइल को करंट नहीं आएगी तो ये करंट यहाँ से पास करेगा इधर, तो आपके साथ ये लाइट क्या होगा, ऑन होगा। तभी जब मोटर ऑफ है तो आपके साथ लाइट ऑन होगा। लेकिन अगर आप स्विच को ऑफ से ऑन की तरफ शिफ्ट करें, ऑन, जब ऑन की तरफ शिफ्ट करें तो करंट यहाँ से इधर आएगा। जब करंट इधर से आएगा तो आपके साथ मोटर क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। जब मोटर स्टार्ट हो जाएगा तो मोटर को हमने किससे, इसके इनपुट के साथ कनेक्ट किया। जब इनपुट के साथ कनेक्ट किया तो इसको इनर्जाइज करेगा। जब इसको इनर्जाइज करेगा तो नॉर्मली क्लोज का प्रॉपर्टी क्या है, जब इसको इनर्जाइज करे तो ये आपके साथ ओपन हो जाएगा। जब ओपन हो जाएगा तो यहाँ से इधर करंट आना स्टॉप हो जाएगा। जब स्टॉप हो जाएगा तो आपके साथ लाइट नहीं चलेगी। सो एक ही रंग में अगर आप कुछ प्रोसेस को करें तो इस रंग से आप दूसरे रंग को कंट्रोल कर सकते हैं। इन द फिगर बिलो, विल the power for the output on the first rung normally be on and off? Would output on the second rung normally on and off? इधर अगर आप पावर को ऑन ऑफ करें तो इधर भी आपके साथ ऑन ऑफ हो सकती है, तब जब आपको इसको इसके साथ इस तरह लिंक करें, जब मैंने आपको लिंक करें। ये भी तरीकाकार होगा, इसको हम फर्दर यूज करेंगे कि एक रंग से दूसरे रंग को हम कंट्रोल करेंगे। इस स्लाइड का समझ आ गया? Yes, Yes, sir. sir. इस स्लाइड में अगर कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। ठीक है, अभी लेचिंग की तरफ हम आते हैं कि हाउ वी विल लेच द आउटपुट टू द इनपुट। एक तरीका का तो ये था कि डायरेक्टली उधर हम इज अ लेच यूज करें, ठीक है। इज अ लेच, इसको अगर हम यूज करें, और दूसरा तरीकाकार ये है कि हम इसके लिए 2 स्विचेस को यूज करें, 2 बटन्स को, एक स्टार्ट बटन होगा, एक स्टॉप बटन होगा। तो हम थोड़ा बहुत तरीके से आते हैं। पहले इसको डिस्कस करते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। जब इसको हम डिस्कस करें तो इसके बाद हम इधर आते हैं, ठीक है। सो विद द लेडर डायग्राम देयर कैन बी मोर देन वन आउटपुट कनेक्टेड टू अनदर। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि एक आउटपुट को आप किसी इनपुट के साथ कनेक्ट करें, ठीक। तो एक से भी ज्यादा से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अभी इधर हमारे साथ एक रंग है, ठीक है, हमारे साथ एक रंग है क्योंकि एक आउटपुट है, और इसमें कौन सी एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये, एक मेन ब्रांच और एक इसके साथ कनेक्शन ब्रांच। बट हाउ दिस वर्क, इधर हमारे साथ 2 बटन है, एक इनपुट ए है और एक हमारे साथ इनपुट बी है। द इनपुट ए विल shift the current
from that point to that point. When that become normal, then when the coil of the input A will be energized. और दूसरा हमारे साथ है input B. It will allow the current from that point to this point when the input B coil is not energized, क्योंकि ये normally close है और एक के साथ normally open है. So और ये आपके साथ एक आउटपुट है, सपोज मोटर है. इधर हमने एक दूसरा स्विच यूज किया और इस स्विच को हमने आउटपुट के साथ क्या किया, लिंक किया. इससे पहले स्लाइड पे हमने क्या किया, इस आउटपुट किसके साथ लिंक कर दिया ताकि आपको समझ आ जाए कि लिंक हम कर सकते हैं नहीं कर सकते. आप अभी आपको समझ आ गया कि इसको हम लिंक कर सकते हैं, तो अभी इधर लिंक करते कैसे. इसका आउटपुट को हमने इस आउटपुट के साथ क्या किया, लिंक. तो अभी इस सिस्टम के लिए चूंकि स्टार्ट में ये अफ है, इसका मतलब है ये स्विच भी अफ है और ये स्विच भी करंट फ्लो करने के लिए एनर्जी होनी चाहिए, एनर्जाइज होनी चाहिए और ये तो काम करेगा. सो इस मोटर को स्टार्ट करने के लिए जस्ट इस कायल का इनिशियल में स्टार्ट होना चाहिए ताकि इसको रन करे. जब रन करे तो आपके साथ ये एनर्जाइज हो जाएगा. जब ये एनर्जाइज हो जाएगा तो करंट आपके साथ फिर इस तरह आएगी. सो आपके साथ ये चीज़ ऑन करने के लिए पहले आपने इस पर क्लिक करना होगा. ये पुश बटन भी हो सकते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर ये पुश बटन है सपोज, तो ये हमारे साथ इस तरह पुश बटन आपने ऐसे करें. तो जब इसको हम प्रेस करें तो आपके साथ करंट आ जाएगा. जब करंट आ जाएगी तो एलईडी नॉर्मली क्लोज है. नॉर्मली क्लोज का मतलब करंट इस पे पास होगा. तो करंट इसमें पास हो गया और आपके साथ आउटपुट ऑन हो गया. जब आउटपुट ऑन हो गया इसका मतलब है कि ये स्विच ऑन हो गया. जब इस स्विच को ऑन हो गया, अब ये तो आपने एक दफ़ा प्रेस किया था, इसको आप अभी रिलीज कर दें. जब आप रिलीज भी कर दे तो आपके साथ ये ऑन हुआ था, जिसकी वजह से ये एनर्जाइज हुआ था. जब एनर्जाइज हुआ तो आपके साथ करंट इधर आ जाएगी. जब करंट आपके साथ इधर आ जाएगी तो आपके साथ ये नॉर्मली क्लोज है, तो आपके साथ मोटर ऑन हो. तो ये जो बटन है आपने जस्ट एक दफ़ा प्रेस कर दिया तो आपके साथ मोटर ऑन हो गया. अब इसको अगर आप प्रेस करें या ना करें तो आपके साथ तो मोटर ऑन होगा. अभी सपोज इसको आपने क्लोज करना है क्योंकि तो फिर हमेशा के लिए क्लोज होगा. तो आपने क्या करना है, तो आपने इस तरह करना है कि ये इस स्विच को यूज़ करना है. ये स्विच के नॉर्मल क्लोज है, इसको अगर मैं इनर्जाइज कर तो ये ओपन हो जाएगा. जब ओपन हो जाएगा तो इसको करंट नहीं आएगी. जब करंट नहीं आ जाएगी तो आपके साथ आउटपुट इसका जीरो हो जाएगा. जीरो का मतलब है ऑफ. जब ये ऑफ हो जाएगा तो इसको करंट नहीं आएगी, तो आपके साथ ये भी ऑफ हो जाएगा. जब ऑफ हो जाएगा तो इधर करंट फ्लो स्टार्ट ऑफ हो जाएगा, तो आपके साथ सिस्टम ऑफ. सो ये जो सर्किट है ये आपके साथ एक ऐसा मोटर को कंट्रोल करते हैं कि इसमें 2 स्विचेस है. अगर आप स्विच 1 को क्या करें, यूज़ करें स्विच 1 को, तो आपके साथ मोटर ऑन होगा. अगर स्विच बी को आप यूज़ करें तो आपके साथ मोटर ऑफ होगा. तो इसमें ऑन होने के लिए एक बटन है, ऑफ होने के लिए दूसरा बटन है. समझ आ रही है? Yes, sir. तो इस इनपुट ए को अगर आप स्टार्ट बटन लिख ली कि दिस इज स्टार्ट बटन, और इनपुट बी को आप स्टॉप बटन लिखी या ऑफ लिख, आप स्विच लिखी, ठीक है. तो इसका मतलब ये कि ये मोटर आपके साथ जब इसको स्टार्ट करना होगा तो इस स्टार्ट स्विच को आपने क्लोज करना होगा. अगर आपने इसको ऑफ करना है तो आपने इस बी को आप यूज़ करेंगे. तो ये एक सिंपल सा सर्किट था कि लेचिंग का पोजीशन आपको समझ आएगी इससे. दूसरा सपोज हम इसको अगर यूज़ करें तो इधर हम कैसे काम करते हैं. इधर इसने इसको वही नाम दिया कि इसका नाम है स्टार्ट बटन, इसका नाम है स्टॉप बटन. और ये हमारे साथ है मोटर आउटपुट Y430, आउटपुट कॉन्टेक्ट Y430. हमने इसको इसके साथ लेच कर दिया और ये हमारे साथ स्टार्ट बटन है और ये हमारे साथ स्टॉप बटन है. इसको अगर आप इनर्जाइज करें तो आपके साथ सिस्टम ऑन होगा, इसको इनर्जाइज करें तो ऑफ होगा. लेकिन ये स्टॉप बटन आप इस तरह शो करेंगे. इधर उसने इसका नाम लिखा है स्टॉप बटन, तो इसलिए इसने तरह नहीं किया. लेकिन ये आपके साथ क्या होगा, इस तरह होगा, क्योंकि इसने कहा स्टार्ट एंड स्टॉप. जिसका मतलब है कि जब स्टार्ट है तो इसका मतलब है नॉर्मली ऊपर, जब स्टॉप बटन है तो इसका मतलब है नॉर्मली क्लोज.
ये बात याद रखिए, अगर हम कहें कि दिस इज अ स्टार्ट स्विच, इसका मतलब है दिस इज नॉर्मली ओपन। अगर हम कहें कि दिस इज अ स्टॉप स्विच, तो इसका मतलब है नॉर्मली क्लोज। तो इसलिए इस स्टॉप लिखे तो इसने इसका सिंबल इस तरह नहीं यूज़ किया था, लेकिन अगर आप यूज़ करें तो अच्छा होगा। अभी जस्ट मैंने इधर लेबल किया तो वही लेबल आपको इधर नज़र आ रही है, ठीक है, ये वही डायग्राम। अभी ये तो हमारे साथ इसका आ गया। इधर हम एक क्लेम करते हैं कि वी विल कंट्रोल मोर इनपुट फ्रॉम सिंगल आउटपुट। वन आउटपुट से हम ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, तो एक हमने इससे ये कंट्रोल किया। दूसरा ये भी है कि अगर आप इससे इस स्विच को कंट्रोल करें, इसका मतलब ये है कि जब ये अप होगा तो आपके साथ ये लाइट ऑन होगा, और जब ये आपके साथ ऑन हो जाएगा तो आपके साथ ये लाइट ऑन हो जाएगा। तभी इस दोनों का क्या मतलब है? इन दोनों का मतलब ये है कि अगर आपके साथ एक बड़ी सिस्टम है, आप ये देखना चाहते हैं कि हमारा सिस्टम ऑन है या ऑफ है, तो अगर आपके साथ ये लाइट ऑन है, ये लाइट, इसका मतलब ये है कि आपके साथ मोटर ऑफ है। लैम्प फॉर द पावर नॉट इम्प्लाइड, इधर इसको पावर इम्प्लाई नहीं है। और अगर ये स्विच ऑन है तो उसका मतलब है कि लैम्प फॉर द पावर इम्प्लाइड, ठीक है, कि लैम्प को पावर अप्लाई है, तो लैम्प को पावर अप्लाई तब होगा जब आपके साथ ये मोटर ऑन होगा, और आपके साथ ये इसको अप्लाई तब होगा जब ये आपके साथ अप होगा, ठीक है। और इसको देखिए लैम्प फॉर पावर नॉट अप्लाई का मतलब कि इसको आपने पावर अप्लाई करना नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट किसके साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब है कि इसको पावर आपने देना होगा, जब इसको पावर आप देंगे तब आपके साथ ऑन होगा। ये लफ्ज़ समझने का ये है। लेकिन अगर आप इसको जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू मतलब है कि आपको मैंने बताया कि एक स्टार्ट बटन है, जब आप स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे तो आपके साथ मोटर स्टार्ट हो जाएगा, जब मोटर स्टार्ट हो जाएगा तो आपके साथ ये एनर्जाइज होगा, तो आपके साथ मोटर ऑन होगा। इसको स्टॉप करना होगा तो आप इसको यूज़ करेंगे। अभी फॉर एग्जांपल इसके लिए आप पायलट लाइट को अगर यूज़ करें, पायलट लाइट का मतलब ये कि आपको कैसे पता लगेगा कि ये मोटर ऑन है या ऑफ है। ये आप उस इंडस्ट्री में यूज़ करेंगे कि फॉर एग्जांपल आपके साथ बहुत दूर या आप कंट्रोल रूम में बैठे, दिस इज आवर कंट्रोल रूम में बैठे, क्योंकि पीछे तो कंट्रोल रूम से हम तो इस तरह नहीं करेंगे कि फॉर एग्जांपल सीमेंट का फैक्ट्री है और हम जाएंगे कि ये मोटर ऑन है या पे इस तरह, ठीक है। तो इधर आपको समझ इस कंट्रोल रूम में आप देखेंगे कि हमारे साथ फलाना मोटर ऑन है ऑफ है, फलाना सिस्टम अभी इसका हीट कितने, और अभी सब कुछ आप एक ही रूम से कंट्रोल करेंगे। तो इसलिए इसको आप अगर यूज़ करेंगे कि इस तरह यूज़ करेंगे कि हमारे साथ ये जो सिस्टम है वही जो उधर आप जो मशीनरी है वो ऑन है या ऑफ है, जो मोटर है उधर बड़ी मोटर है वो ऑफ है या ऑन है, इसके लिए आप टू लाइट्स यूज़ करें। अगर ये लाइट ऑन है तो इसका मतलब है कि ऑफ है, और ये लाइट है तो इसका मतलब है ऑन है। आप जस्ट एक को भी यूज़ करें, इसने इधर वैसे इसने टू यूज़ किया ताकि आपको समझ आ जाए कि हम ज़्यादा कनेक्ट करते थे। जनरली हम इस तरह नहीं करते, हम जस्ट एक को यूज़ करते हैं पायलट लाइट, कि अगर ये ऑन है तो इसका मतलब है कि वो ऑन है, अगर ये ऑफ है तो इसका मतलब ये ऑफ है, ठीक है। तो दोनों की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इधर हम आपको ये पॉइंट समझा नहीं रहे थे कि आप एक इंडस्ट्री में हो और आप एक सिस्टम को ऑन ऑफ करना पायलट लाइट से जानना चाहते तो क्या करेंगे। इधर हम आपको ये पॉइंट समझाते कि यू कैन यूज मोर देन वन आउटपुट कनेक्टेड टू कॉन्टैक्ट। ये पॉइंट के लिए हमने इसको इसलिए बार बार यूज किया। अभी सपोज ये आपके साथ एक इनपुट है और इसके साथ टू आउटपुट आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका फ्लो डायग्राम आप कैसे बनाते हैं? फ्लो डायग्राम का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल कोई आपको ये बता दे कि इनपुट दिस इज आउटपुट ए, दिस इज आउटपुट बी एंड दिस इज इनपुट। इनपुट आपके साथ इधर ऑफ था, इतनी टाइम के लिए आपके साथ इनपुट ऑन हो गया, इतनी टाइम के लिए इनपुट ऑन हो गया। तो आप क्या करें, इसके लिए ड्रा करें, ये आपके साथ नहीं होंगी। अभी ये देखिए जब ये आपके साथ ऑन हो जाएगा तो करंट इधर आ जाएगा और इसके साथ साथ इधर भी आ जाएगा। जब इधर आ जाएगा मतलब ये भी ऑन होगा, ये भी ऑन होगा।
तो जितने टाइम के लिए ये ऑन होगा इतनी टाइम के लिए ये भी ऑन होगा, इतनी टाइम के लिए ये भी ऑन होगा। इसका मतलब है इसका ग्राफ इस तरह जाए, लो आउटपुट फ्लो आपके साथ इस तरह जाए। लेकिन अगर आप इसको यूज करें, ये इनपुट ए है, इनपुट बी है, आउटपुट ए आउटपुट बी। सो इनपुट ए का सपोज इस तरह इतनी टाइम के लिए ऑन है और आउटपुट बी, इनपुट बी इतने टाइम के लिए ऑन है, इस इधर ये ऑफ है। अब ये देखिए जब इनपुट ए ऑन हो तो करंट इधर आ जाएगा, डायरेक्ट इधर तो आपके साथ ऑन होगा, जितने टाइम के लिए ये ऑन होगा इतने टाइम के लिए ए, तो इसके साथ लिंक करें, साथ लिंक करें तो आपके साथ इतने टाइम के लिए ऑन होगा। लेकिन जब आपके साथ ये भी ऑन हो और ये भी ऑन हो तब आपके साथ ये ऑन होगा। तभी इस पोर्शन में अगर आप देखिए, इस पोर्शन में दोनों ऑन है, इधर आपके साथ ये ऑन है ये ऑफ है, इधर आपके साथ ये ऑन है ये ऑफ है, तो आपके साथ इधर भी इस मोटर बी का आउटपुट नहीं होगा इधर, और इधर भी आपके साथ नहीं होगा, जस्ट किधर होगा इस पोर्शन में होगा। इस पोर्शन का हमने इधर यूज किया। समझ आ रही है? क्योंकि ये हम इसलिए पढ़ते हैं कि ताकि आपको समझ आ जाए कि इनपुट एनर्जाइज हो गया, आउटपुट एनर्जाइज हो गया, और इसको कितने टाइम के लिए फ्लो करे, इसमें करंट फ्लो करेगा, ताकि आपको ये अगर क्लियर है तो इसका मतलब है कि आप मज़ीद जितनी भी रेडियोलॉजी है वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये एक सिस्टम था कि आप इसको ये एक रेडियोलॉजी कोड था और इसका हमने आउटपुट फ्लो डायग्राम बना दिया कि इनपुट की साइकिल इतनी साइकिल के लिए ऑन है, इतने टाइम के लिए ऑन है, तो इसका ऑन ऑफ आप बता दी, पावर फ्लो डायग्राम। शाबाश। शाबाश, इसके समझने की कोशिश करें। ये सेम सर्किट है, ठीक है वही, लेकिन इधर इसका हमने इनपुट का नाम दिया, इधर हम इसको डिजिट्स के नाम से एडजस्ट किए। सभी आपके साथ ये कि एक ए है, एक बी है, एक सी है। जब ए ऑन हो तो आपके साथ ए ऑन होगा, जब ए भी ऑन हो बी भी ऑन हो तो बी ऑन होगा। जब ए भी ऑन हो तो आपके साथ करंट इधर आ जाएगा, जब बी ऑन हो तो इधर आ जाएगा, और जब सी ऑन हो तो इधर भी आ जाएगा। अगर ए ऑन हो बी ऑन हो सी ऑन हो तब के साथ तब सी ऑन होगा, अदरवाइज ऑन नहीं होगा। सो इस केस में अगर एक इतने टाइम के लिए ऑन है, बी इतने टाइम के लिए ऑन है, सी इतने टाइम के लिए ऑन है, तो आप इनके आउटपुट क्या करें, क्योंकि जब ए ऑन है तो आपके साथ ये तो बी पर डिपेंड नहीं करता, ऐसे तो ये आपके साथ ऑटोमेटिकली ऑन है, तो यहाँ तक सेम एज होगा, जितना ए है इतना बी। अभी डिपेंड करता है बी, अभी ये बी है ना, सो इस पोर्शन में ये ऑन है ये ऑफ है, तो हमारे साथ इस पोर्शन में बी ऑन नहीं होगा, इस पोर्शन में बी ऑफ है और ये ऑन है तब भी आपके साथ ऑन नहीं होगा, जस्ट इस पोर्शन में आपके साथ बी ऑन होगा, तो आपके साथ ये ऑन। अभी जो उनकी सी है तो सी इधर ये देखिए, इस पोर्शन में ये ऑफ है ये भी ऑफ है, ये आपके साथ क्या ऑन है तो आपके साथ ऑफ होगा। इस पोर्शन में आपके साथ सर इसमें थोड़ा मसला है। हाँ थोड़ा मसला इसमें है, ठीक है, डबल ना कीजिए। सर गलत। इसका मतलब ये है कि ये ऑन नहीं होगा, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल ये आपके साथ ऑन है, ये आपके साथ ऑन है और ये ऑफ है, तो फिर भी आपके साथ ऑफ होगा। अभी ये ऑन है ये ऑन है ये ऑफ है,
इसका मतलब है ये भी है, तो इसका मतलब है कि ये आपके साथ कंप्लीटली सारा होगा। ये नहीं, इसको अगर आप इस तरह करें, थोड़ा इसको मजीद कर दे तो अच्छा होगा। इस तरह कर दे तो आपके साथ ये आउटपुट थोड़ा इस तरह आ जाएगा और ये आपके साथ जस्ट इतना आ जाएगा। समझ आ गया? यस सर। अभी ये आपने अभी करना है, ठीक है? असाइनमेंट में आपको अपलोड कर दूंगा इसको। हमने असाइनमेंट का नाम दिया, लेकिन इस असाइनमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप उसको गियर में कर दो। अब ये असाइनमेंट है, ये आप खुद करें, शाबाश। इसको समझने की कोशिश करें कुछ टाइम के लिए, और फिर इधर आपने करना है। ठीक है, तो अब में से एक ने इस तरह बना दिया ए बी, Reka uli bukan ada kamu cuma dah jodku diagram. Serta send kui आओ कनेक्शन देखो अब personal को. शाबाश। सर तो सेंड को एक ने इस तरह बना दिया था, शाबाश। X रहमतुल्लाह, ये कैसी ठीक है, शाबाश, आप हमें समझा दें। रहमतुल्लाह, सजाद खान आप बना दे, शाबाश, इधर बना दे। सजाद खान आप अपना डायग्राम इधर बना दे, शाबाश। सजाद खान, सर जुड़ेगी क्या ना? सजाद गुल ना, सजाद खान सारा। जी सर हेलो दिल से जोड़ कम सर वाह वाह, ओके सर सजाद खान इसको आप मॉडिफाई कर इस तरह कर दे, डेवलप अ सिंपल ladder logic program that will turn on and output X if A and B are on, R input C are closed। इसको चेंज करिए, इनपुट A and B are on, R input C are off। ये ऑन इधर लिख ली, इसको जी सर ऑफ।
सर दाबाला आणखी सर शिकला इसके लिए क्या करें? द्वाणा क्लूची सर शाबाश। हेलो ये सर इसके साथ टीआईबी सर क्लूची सर नॉर्मली क्लूची सर नो आउटपुट पानी सर ठीक है। कौन कहता है कि इसका इसने ठीक बनाए? जो कहता है कि ठीक बना रहे हैं वो इधर इस तरह, जो कहता है कि इसने बना रहे ठीक है, जो कहते हैं इसने बना रहे फाल, वो इधर टिक लगा इस तरह। जो कहते हैं कि फाल्स बने हुए इधर लगा दे। शाबाश। साजिद खान कहता है कि develop a simple ladder logic program that will turn on an input X if input A and B are on or input C is off। इसका ladder logic कोड इस तरह है। जो कहता है कि ट्रू है वो इधर टिक लगाए, जो कहता है कि फाल्स है वो इधर लगाए। शाबाश। ठीक है। वो ये कि अगर आप कोई इधर कोड लिखना चाहते हैं तो ये बात याद रखें कि जब एंड आ जाए, एंड इसका मतलब है आपने इन दोनों स्विचेस को सीरीज में लगाने। अभी तक जो मैंने आप पे डिस्कशन कर रहे इसका मतलब ये था कि एक बात ये आपने करने कि जब एंड आ जाए तो इसको आपने सीरीज में लगाने, जब आर आ जाए इसको आपने पैरेलल में लगाने। अभी कहते हैं कि ऐसा लेडर लॉजिक बना दे कि आपके साथ एक स्विच हो एक्स, ये आपके साथ है एक्स, सॉरी आउटपुट एक्स, ये आपके साथ ऑन हो। जब ये दोनों ऑन हो तो दोनों ऑन हो तो ऑन हो का मतलब ये है कि ये नॉर्मली ओपन होंगे, दे विल बी नॉर्मली ओपन। जब दोनों ऑन हो का मतलब है बोथ आर ऑन मीन कि ये नॉर्मली ओपन स्विच आप लगाएंगे। So this is A and this is B। इसके बाद R है तो R का मतलब है कि आपने एक पैरेलल रंग बनानी है। इसको ये नहीं है और इसका नाम है C। लेकिन इसका देखिए ये अप हो, R ये अप हो तो अप का मतलब है नॉर्मली क्लोज, इस तरह आपने लगानी। समझ आ गया? यस सर। वो कहता था कि जब दोनों अफ वो तो इसका मतलब है कि if A and B are off or C is on तो फिर आप इस तरह करेंगे, इसको इस तरह कर रही, इसको इस तरह कर रही और इसको खत्म कर दे और इस तरह नॉर्मली ओपन लगा दे। ठीक है, या इस तरह कुछ आपको बता दें कि इनपुट A is on और B and C is on तो फिर आप A इधर लगा दे और B और C इसको फिर जिसका मतलब है कि इसका डिफरेंट स्टेटमेंट है आपके, जो भी आपको कहे तो आपके साथ समझ आनी चाहिए। क्लियर? यस सर। सो ये था आज का क्लास और आपको मैं एक असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, एक तो इसमें क्वेश्चन होगी जो कि लेडर लॉजिक बना देंगे और साथ में इसका मैं आपको इस तरह ड्यूटी साइकिल दूंगा कि इस साइकिल में ये ऑन ऑफ है और आप इसको कर दें। ठीक है, असाइनमेंट को आपको कल तक मिल जाएगा और फिर आपने आज तक सबमिट करनी है। ठीक है, आज की जो डेट है सॉरी आज हम क्लास लेते हैं ना, हर थर्सडे को हम क्लास लेते हैं तो जो कमिंग थर्सडे को थ्योरी का क्लास है इसमें आपने करनी। और साथ साथ में अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने लीडर लॉजिक का जो लॉजिक्स प्रो सॉफ्टवेयर है वो आपने इंस्टॉल किए। यस सर। ठीक है, तो tomorrow on Friday we will take class at 9 a.m. ठीक था, tomorrow the PLC lab class will be at 9 a.m. ठीक है, अभी तो मैंने अनाउंस कर दिया। सर मुझे यस